السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ وقف ترمیمی بل سے متعلق جے پی سی کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ وقف بل غیر آئینی، وقف کو بچانے کے لیے نہیں، وقف کو چھیننے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اجلت میں رپورٹ پیش کی گئی، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا رد عمل۔ کلیدی شعبوں میں گوگل کا حکومت تلنگانہ کے ساتھ اشتراک، معاہدے پر دستخط، مائیکروسافٹ کے دفتر کا وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں افتتاح۔ بی سی طبقے کے لیے بی آر ایس مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہے۔ کے سی آر سروے میں حصہ لیں، کانگریس کا مطالبہ۔ بٹ وکرمارکا نے ناکامی قبول کر لی ہے، بی سی طبقے کو جان بوجھ کر کم کیا گیا، بی آر ایس کا الزام۔ ہائیڈرا کی طرف سے غیر مسلمہ ہورڈنگز کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف مقامات پر 40 سے زیادہ ہورڈنگز کا انہدام۔ میرچل ملکاجگری میں ریسارٹ اور کنونشن سینٹر کا بھی انہدام۔ اور نارائن گڑھ میں سرقے کی سنگین واردات، 2 کروڑ روپے کے طلائی اور ہیرے جواہرات کا سرقہ، ناگپور سے سارق کی گرفتاری کی اطلاع۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ، کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ بی بی کیو سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BH کے لیے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ شور و غل کے درمیان وقف ترمیمی بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ جمعرات کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کر دی گئی۔ راجیہ سبھا میں یہ رپورٹ صبح میں پیش کی گئی، جبکہ لوک سبھا میں دوپہر 2 بجے کے بعد پیش کی گئی۔ کمیٹی کے صدر نشین جگدمبکا پال جب رپورٹ پیش کر رہے تھے، ایوان میں اپوزیشن ارکان کی طرف سے نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن کی طرف سے ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ دوسری طرف
वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि अपोजिशन के बाज़ अरकान ने इस बात को लेकर तशवीश का इजहार किया है कि उनके एतराज़ात को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अमित शाह ने उनकी पार्टी की तरफ से तयख्खुन दिया कि अपोजिशन की तरफ से जो भी एतराज़ात रहेंगे उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया जाता है तो उनकी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा। राज्यसभा में भी शोरगुल के दरमियान रिपोर्ट पेश की गई। अपोजिशन के अरकान ने कार्रवाई से वॉकआउट किया। पार्लियामेंट की कार्रवाई को 10 मार्च तक सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट के पार्लियामेंट में पेश होने पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह बिल न सिर्फ गैर आईनी है बल्कि आर्टिकल 14, 15 और 29 की खुली खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को छीनने के लिए लाया जा रहा है। यह हुकूमत नजरियाती बुनियाद पर मुसलमानों से इबादत का हक छीनने की कोशिश कर रही है। जल्दबाजी में रिपोर्ट को पेश किया गया है। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों से छीनने के लिए लाया जा रहा है। और इसका तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को गच्चीबौली में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि आज का यह दिन हमारे लिए फख्र का बाइस है। हैदराबाद में 1.1 मिलियन स्क्वायर फुट पर यह कैंपस कायम किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सफर में एक संगमील साबित होगा। हैदराबाद और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान देरीना शराकतदारी रही है। इस नए कैंपस से 1000 मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। माइक्रोसॉफ्ट और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से एडवांटेज तेलंगाना प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। इसके तहत AI एकेडमी का क़याम भी अमल में आएगा और इस प्रोग्राम के तहत 500 स्कूल्स में मसनूई ज़हानत AI के जरिए तलबा को तरबियत दी जाएगी। अवामी खिदमत के लिए भी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सरकर्दा मल्टीनेशनल कंपनी गूगल ने
मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत तेलंगाना के साथ पॉलिसियों पर मबनी शराकत का ऐलान किया है। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से ज़राअत, नक़्ल व हरकत, तालीम, हुकूमत साजी और दीगर शोबों को फ़रोग़ देने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गूगल के इन ऐलान का खैर मकदम किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि रियासत की मजमूई तरक्की में ये अहम रोल अदा करेगा। स्टार्टअप्स और वर्कफोर्स में इजाफा होगा। हुकूमत तेलंगाना के साथ तय पाए मुआहदे के मुताबिक गूगल कंपनी मसनूई जहानत के जरिए इन शोबों में तरबियत फराहम करके कई असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुआशी फ़रोग़ हासिल करेगी। गूगल के कंट्री मैनेजर प्रीति लब्ना ने कहा कि डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए हुकूमत तेलंगाना ने उनकी कंपनी के साथ इश्तराक किया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू गूगल के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। हुकूमत के विप ए श्रीनिवास ने कहा कि बीसी तबके के लिए बीआरएस पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है और झूठी मोहब्बत का ड्रामा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को 34% से कम करके 24% करने वाली बीआरएस पार्टी ही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 लाख मुलाजिमीन के जरिए मरदमशुमारी की है, गैर जानिबदाराना ज़ात पात की मरदमशुमारी हुई है। केसीआर और बीआरएस दीगर कायदीन ने मरदमशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। बीसी तबके को मजीद फ़ायदा पहुँचाने के लिए सर्वे में हिस्सा न लेने वालों के लिए मोहलत दी गई है। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर ज़ात पात की मरदमशुमारी में हिस्सा लें। बीआरएस पार्टी के रुकन असम्बली विवेक नंदा ने कहा कि नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने जामे सर्वे में पार्टी की नाकामी कबूल कर ली। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए खर्च करके जो सर्वे कराया गया, 2 करोड़ बीसी तबके की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि सर्वे बराबर नहीं करा सकते तो हुकूमत किस तरह चलाएंगे। ये हुकूमत मजाक बन चुकी है। बीआरएस पार्टी और बीसी तंजीमें सर्वे दोबारा कराने का मुतालबा कर रही हैं। बीसी तबके को जानबूझकर साजिश के तहत कम किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी मफादात के लिए 1 दिन का असेंबली इजलास तलब किया गया था। राहुल गांधी रेवंत रेड्डी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अवाम की बरहमी देखकर राहुल गांधी ने वरंगल का दौरा मुलतवी कर दिया था। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर इंतखाबी सदाकतनामे में मौजूद हैं, सिर्फ सर्वे के जरिए ही तफसीलात हासिल होंगी। कांग्रेस कायदीन की कम अक्ली का मुजाहरा है। बीआरएस पार्टी के लीडर एम कृषांक ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत में रेती के कारोबार में इजाफा हुआ है, लेकिन रियासत की आमदनी में कमी हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के दौर में हर साल आमदनी होती थी। रियासत को होने वाली आमदनी रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी की जेब में जा रही है। कोंडल रेड्डी के रेती माफिया से रियासत के खजाने को नुकसान हो रहा है। इंद्रमा मकानात के नाम मुफ्त रेती के नाम पर टनों की रेती को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा और दीगर प्रोजेक्ट के पास पानी को खाली करके रेती को मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इख्तिदार में आने के बाद ही हुकूमत को 200 करोड़ रुपए की आमदनी में कमी आई है। तेलंगाना कांग्रेस के सेक्रेटरी यदियाकर ने कहा कि केटीआर ने तेलंगाना को कैसीनो में तब्दील कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैरूनी कैसीनो में होने वाला जुआ बीआरएस के रुकन कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी के फार्म हाउस में चल रहा है। केटीआर के ब्रदर निस्बती के मकान में पार्टी में कोकेन पकड़ा गया। रेवंत रेड्डी जब सदर पीसीसी थे उस वक्त व्हाइट चैलेंज किया था। इस वक्त केटीआर को कोर्ट जाकर हत्या का दावा का केस दर्ज किया था। दियाकर ने कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में ही मंजूरी के बाद 2 साल से ये जुआ चल रहा है। उनकी क़यादत केटीआर कर रहे हैं। पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी के फार्म हाउस में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार केटीआर हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि गलती नहीं हुई है, शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, इसलिए हुकूमत दोबारा सर्वे करने का मौका दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम तबकाती सर्वे पर तनकीद करने का हक अपोजिशन जमात को नहीं है। सोनिया गांधी ने मुतालबा किया है कौमी मरदमशुमारी के तबकाती सर्वे कराएं। मरकजी हुकूमत जवाब दे कि ज़ात पात की मरदमशुमारी करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि 5 साल में हुकूमत 6 गारंटियों पर अमल करेगी। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि ज़ात पात की मरदमशुमारी में हिस्सा लें। तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना के बेटे की तलाक से मुताल्लिक मुबैना रिमार्क्स के सिलसिले में तेलंगाना की वजीर एंडोमेंट कोंडा सुरेखा जुमेरात को नामपल्ली की अदालत में पेश हुई। वाज़ेह है कि नागार्जुना ने इस सिलसिले में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ हद की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने कोंडा सुरेखा को समन जारी किया था। केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है।
आंध्र प्रदेश वाईसीपी के साबिक एमएलए वल्लभ नेनी वंशी को हैदराबाद से गिरफ्तार करते हुए आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि हैदराबाद के रायदुर्गम हदूद से वंशी को गिरफ्तार किया गया था। पहले उन्हें विजयवाड़ा के भवानीपुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और फिर वहां से कृष्णालंका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वंशी की गिरफ्तारी पर कृष्णा जिले में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। तेलुगु देशम के दफ्तर पर मुबैना हमले के सिलसिले में वंशी को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। दूसरी तरफ नंदगाम के करीब वंशी की अहलिया को रोककर उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था। बाद में उन्हें हैदराबाद रवाना कर दिया गया। बताया जाता है कि वंशी की अहलिया को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है, लेकिन अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की इमारत के 5वें फ्लोर से पीओपी का मलबा गिरने से कार को नुकसान पहुंचा है। तफसीलात के मुताबिक 4 शुंबे को यह वाकया पेश आया और इस वाकये में रामागुंडम मार्केट कमेटी के सदर नशीन की कार पर पीओपी का मलबा गिर पड़ा। ताहम इस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। जुमेरात को मलबा हटाया गया। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पालोनजी कंपनी को दिया गया था। बताया जाता है कि केबल्स और लाइटिंग के कामों के दौरान ड्रिकिंग की वजह से यह मलबा गिरा है। किसी भी तरह के तामीरी नक्स की वजह से यह नुकसान नहीं हुआ है। हाइड्रा की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मुसल्लमा और बिना इजाज़त होर्डिंग्स का इन्हदाम जारी है। जुमेरात को 42 गैर मुसल्लमा और बिना इजाज़त के लगाई गई होर्डिंग्स को मुनहदिम कर दिया गया। बताया जाता है कि प्रकाश आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीवीएस एड्स, आइकर एड्स, आई स्पेस एडवर्टाइजिंग, सौरभई एडवर्टाइजमेंट, यूके एड्स, साइनात एड्स के अलावा दीगर होर्डिंग्स भी इसमें शामिल थीं। दूसरी तरफ हाइड्रा की तरफ से मिर्चल मलकाजगिरी जिले कुमाटीकुंटा के देवरमजाल में प्रकृति रिसोर्ट और प्रकृति कन्वेंशन को मुनहदिम कर दिया गया। बताया गया है कि एफटीएल हुदूद में आने के बायस इन इमारतों को मुनहदिम किया गया है। इस सिलसिले में हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ को मुतादिद शिकायतें मौसूल हुई थीं। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त किया गया था। शब बारात के मौके पर शहर के तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। जू पार्क ता आराम घर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर को भी बंद रखा जाएगा। मजलिस की तरफ से इस सिलसिले में मुताल्लिका हुक्काम से नुमाइंदगी की गई थी। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि पुराने शहर के फ्लाईओवर्स पर पुलिस की तरफ से सख्त नज़र रखी जाएगी। वाज़ेह है कि शब मेराज के दिन बहादुरपुरा फ्लाईओवर पर हुए हादसे के बाद पुलिस की तरफ से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। सरपरस्तों से भी अपील की गई है कि रात के औकात में बच्चों को स्कूटर और बाइक सवारी से बाज रखें। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस साइबराबाद श्रीनिवास से मुलाकात की और शब बारात के मौके पर आराम घर के फ्लाईओवर बंद रखने और ट्रैफिक पर नजर रखने के लिए नुमाइंदगी की। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा मुबारक, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक के 153 और कल्याण लक्ष्मी के 21 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,74,20,184 रुपये बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया है। इस मौके पर तहसीलदार चारमीनार निहारिका, डिप्टी तहसीलदार मंसूर अली, आरआई अंबरपेट मंडल अरुणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने कायदे मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में महकमा सिविल सप्लाईज के अहदेदार वी पलैया से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राशन कार्ड्स के ताल्लुक से बात की और इस काम में पेश आने वाली मुश्किलात की इंसदाद के लिए इक़दाम करने के लिए कहा। इस मौके पर रुकन बलदिया नवाजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा अहमद बेग ने हल्क़ा असम्बली राजेंद्र नगर में श्री गुरुहरे साहब जी महाराज ब्रह्मला सिंह स्थान वाक़े सिख कॉलोनी में 16 फरवरी को निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर जीएचएमसी और महकमे बरक़ी के अहदेदार और महकमे आबरसानी के जनरल मैनेजर डीजीएम एस के रुकन बलदिया नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे।
सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में नुमाइंदा रुकन बलदिया जफर खान ने महकमे बलदिया के दफ्तर वाक़े खैरताबाद में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सहदेव रत्नाकर के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मल्लीपल्ली डिवीजन के ज़र इल्तिवा तरक्याती कामों के अलावा दूसरे उमूर पर बात की और कामों को जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। बाद में जफर खान ने महकमे सिविल सप्लाई सर्कल नामपल्ली की ASO ओहदेदार बुशरा सुल्ताना के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने नए राशन कार्ड बनाने और राशन कार्ड की फहरिस्त में बाज़ नामों के अखराज के मौजू पर बात की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तारीखी मक्का मस्जिद में शब बारात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नमाज शाह 9 बजे शब होगी। मौलाना अली सिद्दीकी नमाज की इमामत करेंगे। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि शब बारात के पेश नज़र सफाई, बरक़ी और पानी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के की दीगर मसाजिद और क़ब्रस्तानों में भी मौसर इंतजाम किए गए हैं। क़ब्रस्तानों में लाइट्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है। मक्का मस्जिद में बाद नमाज इशा जलसे शब बारात भी मुनक्किद होगा। आखिर में दुआ की जाएगी। टप्पा चबूतरा के नटराज नगर की हनुमान मंदिर में गुज़िश्ता रोज गोश्त पाए जाने के मामले की यकसुई कर ली गई है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन जी चंद्रमोहन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिल्ली गोश्त का टुकड़ा लेकर जाली के जरिए मंदिर में दाखिल हुई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर के बाहर CCTV में यह मंजर भी फिल्म बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। डीसीपी ने कहा कि मजहबी मुकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मंदिर में गोश्त पाए जाने की इत्तला के बाद जाफरानी तंजीम के कारकुन एहतजाज करने लगे थे और रिवायती नारेबाजी भी की गई। ताहम पुलिस ने इस मामले को हल कर दिया। कुल हिंद सनती नुमाइश के इख्तिताम के लिए सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। स्टॉल होल्डर्स अपने स्टॉक को जल्द से जल्द ख़त्म करके अपने आबाई मकामात को रवाना होना चाहते हैं। ऐसे में वक्त आखिर अपनी पसंद की अशिया ख़रीदने के लिए अवाम का इज़्दिहाम देखा जा रहा है। समाज के मुख्तलिफ तबक़ात बिलख़ुसूस ख़वातीन की शॉपिंग उरूज पर है। झूले, आइसक्रीम, चाट भंडार की तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जे हैं। फैमिलीज़ कश्मीरी स्टॉल्स, लखनवी मलमल, कतान, जॉर्जेट के मलबूसात और ड्रेस मटेरियल को पसंद कर रहे हैं। खान पान का तो जवाब नहीं। नुमाइश क्लब में मुशायरे, अदबी, तहज़ीबी, मज़ाहिया महफिलों के अलावा म्यूजिकल नाइट्स का भी एहतमाम किया जा रहा है। नुमाइश की एक झलक के लिए शहर, अजला बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी ख्वाहिशमंद यहाँ का रुख कर रहे हैं। हाँ, हर देश का मिलता ना, इधर एक जगह हर देश का मिलता तो अच्छा ही लगता। पहले से लेडीज को शॉपिंग बोले तो पसंद रहता, हर लेडीज को पसंद रहता। बहुत एंजॉय किए, फ्रेंड्स के साथ में आए, एंजॉय करे। ఇట్స్ నైస్ యా చాలా బాగుంది, ఎంజాయ్ చేసాము. ఎక్కువ వరకు లక్నో వరకు చాలా బాగున్నాయి. అందులో ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాము, బాగుంది. ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल व्हील चेयर मिल रहा है। हम लोग तो इतने एज हो गया फिर भी हमारे बच्चे नहीं मानते, तो उनके साथ हमको आना पड़ता है। नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन हुदूद में सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मिनरवा होटल लैन के पास एक मकान से 2 करोड़ रुपए मालियत के तलाई और हीरे जवाहरात का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक इस वक्त दुबई में हैं। उनके घर के निगरान कार अभय केडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शुबा किया जा रहा है कि घर का मुलाजिम, जो बिहार का साकिन बताया गया है, मुबैना तौर पर इस सरखे की वारदात में मुलविस हो सकता है। इत्तला मिलने पर नारायणगढ़ पुलिस की टीम क्लॉस टीम के हमराह मुकाम वाक़या पहुंची और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। इत्तला मिली है कि सारिक़ को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दबीरपुरा पुलिस ने बाइक के सरखे में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 1 फरवरी को आसिफ अली खान की स्कूटी का घर के सामने से सरका कर लिया गया था। 3 फरवरी को इस सिलसिले में दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए तालाब कट्टा के साकिन सैयद उमैर और चंचलगुड़ा के साकिन अलीम को गिरफ्तार करते हुए मसरूका स्कूटर बरामद कर ली। उमैर इससे पहले भी चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 केसेस में मुलविस रह चुका है। सईदाबाद पुलिस ने सरखे की वारदात में सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि माल त्रिपालू ने 2 व्हीलर का सरखा किया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए त्रिपालू को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से मसरूका 2 व्हीलर जब्त की गई। सारिक इससे पहले भी सरखे की 6 वारदातों में मुलविस बताया गया है।
और नाज़रीन आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक JPC की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। वक्फ बिल गैर आईनी, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को छीनने के लिए लाया जा रहा है। उजलत में रिपोर्ट पेश की गई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द अमल। कलीदी शोबों में गूगल का हुकूमत तेलंगाना के साथ इश्तराक, मुआहदे पर दस्तखत, माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। BC तबके के लिए BRS मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। KCR सर्वे में हिस्सा लें, कांग्रेस का मुतालबा। बट्टे विक्रमार्का ने नाकामी कबूल कर ली है, BC तबके को जानबूझकर कम किया गया, BRS का इल्जाम। हाइड्रा की तरफ से गैर मुसल्लमा होर्डिंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ मकामात पर 40 से ज्यादा होर्डिंग्स का इन्हेदाम। मेरचल मलकाजगिरी में रिसोर्ट और कन्वेंशन सेंटर का भी इन्हेदाम। और नारायणगुड़ा में सरखे की संगीन वारदात, 2 करोड़ रुपए के तलाई और हीरे जवाहरात का सरका। नागपुर से सारिक की गिरफ्तारी की इतला। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।